Good evening, everyone. Welcome to one more book launch event. My name is Yashasvi Chaudhary, the host for today on behalf of Adhyan Books. आशा करती हूँ कि आपको हमारे नए ऑथर से मिलना, उन्हें जानना पसंद आ रहा होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज हम जिस बुक के बारे में बात करेंगे, उस बुक का नाम है रेस्ट्रिक्टेड मिस्टिक। इस बुक के ऑथर हैं मिस्टर DS किरण कुमार। He is a seasoned professional with a diverse academic and professional background. He has done BTech in telecom engineering from PSIT, Bangalore. Former software engineer, currently he is an entrepreneur and successfully running a tech and business consultant firm, Tech GST Business Solutions, and healthcare brand, a Golden Recipes and Company. आए अब इनके किताब के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। This book is a honest effort to preserve the simple life story of my father-in-law, who lived a remarkable life, playing a perfect role in every family relationship. He was a part of it. It's not easy to be a good son, a good student, a good friend, a good husband, a good father, a good grandfather, a good neighbor, and a very good father in law. He maintained a perfect relationship with everyone, while most of us struggle to fulfill even one of these roles. I was fortunate enough to spend a small portion of my life with him, and I have realized that living a simple yet perfect life is not easy in today's world. I neither understood nor appreciate his role in my life until the end of his own. Now that he is gone, I truly understand the profound impact he had on me. His absence has left an undeniable void in the lives of those closest to him. Mama, I wish I had spent a little more time with you. Had I known how limited your time was. I'm sorry for my foolishness in our relationship, for the worries I caused you, and for the moments of immaturity you had to endure because of me. I'm sorry for being selfish. I never asked for forgiveness, yet you always forgive me. Thank you for everything. I feel your absence every day. Perhaps life and death was beyond your control, but you lived gracefully in between, playing the simple yet beautiful game of life with elegance. So, this is about the author. So, I would like to congratulate Mr. Kiran that his book is already listed, launched on Amazon. So, आए अब जाने हम इनकी बुक के बारे में बात करते हैं। जो हमारे व्यूअर्स हैं वो आपकी बुक और आपके बारे में अच्छे से जान पाए। So let's welcome Mr. DS Kiran Kumar. So, sir, what inspired you to write this book about your father-in-law's life? क्या inspiration? See, right. So my father-in-law is a sole inspiration to write this book actually. The thing is that ये जो journey है मेरे 38 years, I am 38 years old by the way. So in my 38 years of life, see, I have been with my father, my mother, my friends, okay, relatives है, मेरे brother sisters है, okay, my wife है. तो इन सारों के साथ मैंने जो time spend किया, मैंने ये realize किया कि living a simple life is not easy because हमारा role change हो जाता है. The role which I am playing with my wife, no, it's different when I am playing the same role with my father. Okay, father के जो मैं role play कर रहा हूँ वो different है. Okay, ये जो roles है ना, so if you consider myself actually, so I am not good in any of these relationship actually. So सबके साथ हर किसी को मेरे जिंदगी में complaints है.
तो माय फादर इन लॉ का जो है ना, सो आई कैन डिफाइन हिम एज अ फ्लॉलेस मैन. सेकेंड थिंग इज दैट his entire life can be defined as a service oriented life, and he lived his entire life for others. Okay. तो इंस्पिरेशन का मतलब तो बुक क्यों लिखना है? क्योंकि हर कोई बोलेगा कि हर किसी के फादर इन लॉ या फादर सेम ही रहेंगे. जी. यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट था. तो सम इट अप एक्चुअली, द फर्स्ट पॉइंट इज दैट, समझ लीजिए आप, आई होप यू आर मैरिड. तो मैरिड है आप, तो Yes. आई मैरिड. ओके. तो मैरिज के बाद जिंदगी चेंज हो जाती है. तो एक नया प्लेयर इंट्रोड्यूस होता है लाइफ में. तो क्या होता है, आर्ग्यूमेंट्स होती रहती हैं, झगड़े होते रहते हैं, और एंटायर फैमिली के साथ हम जुड़ जाते हैं. ठीक है. तो वो एंटायर फैमिली विल कम क्लोज टू यू, एंड जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं. तो यहाँ पे क्या होता है, हम स्ट्रगल करते हैं. ओके. मैंने मैंने मदर इन लॉ से बात किया एक्चुअली. शी सेड वन पर्टिकुलर थिंग अबाउट हिम, कि 30+ ईयर्स ऑफ मैरिज, एंड एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि जिस दिन वो झगड़े हो. इमेजिन, जस्ट इमेजिन, they lived together for 30+ years of life. Okay. Not even a single day of argument. Imagine, not even single day, no arguments for 30 years being a married man. And no, not even a single day, एक भी दिन उसने झगड़ा नहीं किया. तो मैंने जब इसको मतलब when I start thinking about it, why, क्यों झगड़ा नहीं हुआ, क्यों आर्ग्यूमेंट्स नहीं हुए. तो माय फादर इन लॉ वाज अ बैलेंस पर्सन, एंड ही वाज बैलेंसिंग द रिलेशनशिप ऑफ माय मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ. ओके. तो Right. तो मुझे शौक लगा कि मेरे वाइफ, हम बहुत झगड़ा करते रहते हैं एक्चुअली. तो हर 2-3 हफ्ते में एक बार आर्ग्यूमेंट्स होते रहते, झगड़े होते हैं. तो 30 साल से झगड़ा नहीं किया, तो हिज लाइफ, हिज स्टोरी मस्ट बी समथिंग एल्स, सो वर्थ प्रिजर्विंग. फर्स्ट थिंग. द सेकेंड थिंग इज, जब उनका फ्यूनरल था, तो आई हैव बीन टू मेनी फ्यूनरल्स. जब किसी का फ्यूनरल होता है ना, वहां पे यूजुअली एक कैटेगरी के लोग होते हैं, जो जो भी प्रेजेंट रहते हैं ना, जो इधर ही इज अ रिलेटेड फ्रेंड, रिलेटिव रहते हैं, उनके क्लोज, मतलब उनके फादर मदर, उनके बच्चे वगैरह रहते हैं, और एक सेट ऑफ उनके फ्रेंड्स रहते हैं, और उनके नेबर वगैरह रहते हैं. ठीक है. तो जो भी वहां पे गैदर्ड पर्सन है ना, उनके रिलेट, मतलब नॉन पर्सन. ओके. लेकिन उनमें दो कैटेगरी के होते हैं. ये कैटेगरी होता है कि जो वेल विशर्स हैं. ओके. ऑल आर वेल विशर्स. ठीक है. वेल विशर्स है जो उनके बारे में अच्छी बात करते हैं. ठीक है. तो और एक सेट ऑफ ग्रुप होता है, जो आप जिनके सामने आप कितना भी अच्छा बनो, कितना भी अच्छा करो, वो आपके बारे में बुराई करेंगे. ठीक है. तो अच्छा बने तो बुराई करेंगे, तो इवन इफ यू आर गुड और बैड, दे विल बैड माउथ अबाउट यू. ओके. लेकिन बीइंग प्रेजेंट इन माय फादर इन लॉ फ्यूनरल एक्चुअली, तो वहां पे एक, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन वाज देयर. तो उनके लाइफ के लिए, उनके लाइफ पे उनपे ऊपर कंप्लेंट था. नॉट इवन अ सिंगल पर्सन वाज बैड माउथिंग अबाउट हिम एक्चुअली. ओके. कुछ भी सब्जेक्ट ही नहीं था उनके बारे में बात करने के लिए. तो दैट अमेज्ड मी. ओके. थर्ड थिंग इज दैट, देखिए, मैं फादर इन लॉ रिलेटेड है. ठीक है. बिफोर मैरिज ऑल्सो ही वाज रिलेटेड टू माय फैमिली एक्चुअली. तो ये जर्नी था. तो मेरा फादर इन लॉ, मेरा जर्नी क्वाइट सिमिलर. मतलब हम लोगों ने 10 साल साथ में बिताए हैं. तो मतलब क्लोज रिलेटिव्स आर कॉमन. तो ये जिस माहौल में हम रहते थे, वो भी रहते हैं. ठीक है. Okay. तो मैं इरिटेट हो जाता था जल्दी. हमारे जो रेस्ट ऑफ द मेंबर्स आर यूज्ड टू गेट इरिटेटेड वेरी इजीली. अगर कोई ऐसा थर्ड पर्सन आ गया वहां पे बीच में डिस्कशन में, यहाँ पर कहीं पे बैठे हैं, तो हम इरिटेट हो जाते हैं जल्दी. लेकिन उनके जिंदगी में, उनके पैदा होने से लेके उनके डेथ तक, देर वॉज अ, मतलब किसी भी रोल में वो, इवन दो देर वर सो मेनी पीपल हु आर इरिटेटिव इन नेचर, तो उनको भी उन्होंने खुश रखा है. ठीक है. एवरीबडी यूज्ड टू फील हैप्पी अराउंड हिम. तो आफ्टर हिज डिमाइज, नो, आई कैन फील दैट. तो ही वाज द सोल रीजन फॉर सभी के जिंदगी का हिस्सा, जो एवरीबडीज लाइफ वाज ऑन ट्रैक जस्ट बिकॉज ऑफ हिज प्रेजेंस. सो आई थॉट कि आज के जमाने में सिंपल जिंदगी चीयरफुली जीना बहुत मुश्किल है. तो उन्होंने जी के दिखाया है, इसलिए मैंने सोचा कि इट इज वर्थ प्रिजर्विंग स्टोरी बोल के. दैट्स व्हाई आई थॉट ऑफ राइटिंग दिस. जी. Sure. That's really true. Like ये बहुत मुश्किल है, अगर मतलब कोई इरिटेटिंग पर्सन है और फिर उसके साथ में बैठना, बात करना, और स्टिल आप यू आर बीइंग वेरी नॉर्मल. तो इनफैक्ट आज की लाइफ में अगर आप देखो तो इट्स रियली टफ. So that's how you got inspiration. This is the point of the first question which I asked.
Yes. जी जी। So, sir, my next question is, what made your father-in-law's life so extraordinary despite its simplicity? क्या ऐसा ओके एक्स्ट्रा सी था जिससे आप ओके इतना ज्यादा इंस्पायर हुए? ओके सी जैसे कि मैंने बोला कि ही वाज नॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन, एक्चुअली ही वाज अ नॉर्मल पर्सन, वी आर नॉट नॉर्मल एक्चुअली। सो हम लोग नॉर्मल नहीं है, डिफाइन लाइक दैट एक्चुअली। तो जिंदगी जीने का एक तरीका होता है एक्चुअली, हम वो तरीका जान नहीं पाए। आई बीइंग 38 इयर्स ओल्ड, आई डोंट नो हाउ टू प्ले द गेम ऑफ लाइफ। ओके, लेकिन वो सिंपल आदमी थे, मतलब क्या उनके उनका एक खास बात था एक्चुअली, क्या है, वो कुछ भी चाहते नहीं थे, मतलब क्या, ही डजंट ही नेवर यूज्ड टू आस्क एनीथिंग एनीथिंग, और ही डजंट ही नेवर यूज्ड टू हैव एनी काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एनीबॉडी एक्चुअली। दैट वाज द गुड थिंग। ओके एक्चुअली, तो समझ लीजिए उनके बेटी के साथ है, उनके बेटी के साथ जब वो बैठे हैं, ठीक है, बात कर रहे हैं, ठीक है, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो वहां पे उनके बेटी का जैसा लाइफ है ना, तो वही वही चलता था, मतलब यूज्ड टू लिव अ लाइफ ऑफ डॉटर। वो उनके बारे में कुछ बात ही नहीं करते थे, उनके लाइफ के बारे में बात ही नहीं करते थे। तो बात करते थे उनके बारे में, अगर वो अपने माँ के साथ बैठे हैं, तो उनके बारे में बात करते रहते थे। तो तो वहां पे थीम ऑफ डिस्कशन बी लाइक द पर्सन हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिम। ओके, उनका लाइफ का चर्चा या उनका एक्सपेक्टेशन क्या है उनका बारे में, ही नेवर यूज्ड टू टेल एनीथिंग अबाउट हिम। ओके, और जो भी उनके आसपास लोग हैं, उनके फैमिली के अलावा उनके फ्रेंड्स हैं, उनके रिलेटिव्स हैं, सभी का रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो समझते कि अब मेरे खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, तो वो सी मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना नहीं आता ही नहीं मुझे अभी तक, ठीक है। मैं बच्चों को, मेरा बच्चा है, मैं बच्चों को देखभाल करता हूँ, लेकिन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आई मेक सम रॉन्ग जजमेंट अबाउट हिम। ओके, कभी गुस्सा आ जाता है, कभी बच्चों को मार देता हूँ, तो कभी उसको समझ नहीं पाता हूँ। लेकिन ये टॉलरेंस जो है हमारे पास एब्सेंट है, आजकल की जनरेशन में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो उनमें वो टॉलरेंस था, वो कामनेस था, खुश रहने का एक तरीका आता था उनको, द गेम ऑफ बीइंग हैप्पी, वो मास्टर किया था उन्होंने। तो वो मुझे नहीं आता, तो आजकल के बहुत लोगों को नहीं आता। और ही हैड अ ग्रेटिट्यूडिंग नेचर, जो भी उनके आसपास है, जो अच्छा है बुरा है वो कंप्लेन नहीं करते थे, वो पॉजिटिव लिखते थे कि सब कुछ अच्छा है, जो भी है अच्छा है। तो दैट वाज द स्पेशल अबाउट हिम एक्चुअली, तो ही वाज अ स्पेशल एक्चुअली। जी। सो मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। क्या ऐसा क्या प्रोसेस था जिससे स्टोरीज गैदर की आपने, मेमोरीज गैदर की इस बुक के लिए, जो आपने ये बुक लिखी है? ओके, क्या आप तो बताएं? मेमोरीज, आई वाज बीइंग विथ माय फादर इन लॉ फॉर 10 years ऑफ माय लाइफ। ओके, जब मेरी शादी हुई, ही गेन लैटर एंट्री इनटू लाइफ, तो मेरे लाइफ में वो एंटर हुए। तो तब से जो भी हुआ है, जितना मैं परसीव कर पाया उनके बारे में, एज पर माई परसेप्शन, आई टुक अ लिबर्टी टू पोर्ट्रे हिज लाइफ विथ रिस्पेक्ट टू माइंड। ओके, लेकिन इसके अदर फेसेस भी थे, जैसे कि उनका रिश्ता उनके माँ के साथ कैसा था, उनके फादर के साथ कैसा था, उनके बेटी के साथ कैसा था, ठीक है, ये सारे मुझे जानने थे। तो मैंने क्या किया, उन सबसे बात किया। तो लेकिन एक मैंने काम किया कि मैंने किसी को बोला नहीं कि मैंने बुक लिख रहा हूँ एक्चुअली, क्योंकि वेन एवर यू टेल समवन कि वी एम राइटिंग समथिंग अबाउट यू एंड हिज रिलेशनशिप एंड इन अ बुक, दे विल ट्राई टू उसको थोड़ा चेंज करने की कोशिश करते हैं, अच्छा बताने की कोशिश करते हैं। तो मैंने यहाँ पे पूरा रॉ रखा है। यूजुअली आप किसी भी बायोग्राफी को देखेंगे ना, वो स्टार्ट होता है उनके बर्थ से लेके कहाँ पे पैदा हुए, कैसे पढ़े, क्या पढ़े, वो सब कुछ भी नहीं बुक में। ये बुक में एक सिंपल स्टोरी है, एक मैसेज है, सोशल, वेरी स्मॉल सोशल मैसेज। ये मैसेज क्या है, सिंपल। तो ये आप मतलब जीना कैसा है, हाउ टू लिव अ सिंपल लाइफ चीयरफुली, दैट इज अ मैसेज। वो आजकल के 99.9% पीपल डोंट नो एक्चुअली, दैट्स व्हाई इवन यू सी सभी लोगों के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं है। ओके, तो मुझे जानना था, क्योंकि मेरे साथ जो जिंदगी है वो मुझे पता है, लेकिन उनके मम्मी, मैंने उनके माँ के साथ बात किया, उनके ब्रदर्स एंड सिस्टर इन के साथ बात किया, ठीक है, उनके मैं और मेरे उनके मेरे साले साहब जो है उनके साथ बात किया, ठीक है, उनके बचपन कैसा था, उनके साथ ये कैसा था। आई टुक अ लिबर्टी देयर, एंड वो सारे
इंफॉर्मेशन मैंने लेके जैसा मेरा परसेप्शन है, मतलब मैं इस रिश्ते को कैसे देखूं, दोनों का रिश्ता एज ए ऑडियंस हाउ आई एम परसीविंग, आई टुक अ लिबर्टी देयर, तो उसको ऐसे मैंने पोर्ट्रे किया है। तो ये रिकलेक्शन वाज पार्ट ऑफ दिस बुक विच वाज implemented with proper communication between his relatives and everybody actually. Finally, I took a consent of everybody before publishing. Okay. So, sir, what was the most challenging part of writing this book? Okay. ये बुक जब लॉन्च हुआ ना, तो एक्चुअली ऑब्वियसली my brother-in-law and mother-in-law got a hint that I am writing a book. They were eagerly waiting for launch of this book. Once this launch, no, actually, they took a hard copy. They read it actually. मुझे एक चैप्टर था वहां पे, एक चैप्टर है जो मतलब आफ्टर मत बोल के एक चैप्टर है। उस चैप्टर में आई एम कंपेयरिंग द करेंट सिचुएशन विद द सिचुएशन व्हेन माय फादर इन लॉ वाज देयर। एक्चुअली इट्स अ प्री एंड पोस्ट हिज डिमाइस। ओके, Okay. तो वो चैप्टर लास्ट में है, द लास्ट मतलब लास्ट में है, तो तब तक एवरीबडी वाज हैप्पी। एवरीबडी, वो बहुत लोगों को अच्छा लग रहा था कि बुक बहुत अच्छा है। लेकिन वो चैप्टर जब आते हैं ना, तो 2 सेकंड के लिए रुक जाते हैं वो, एक्चुअली इन्होंने ऐसा क्यों लिखा। वहां पे मैंने कुछ भी छुपाया नहीं है। सो वहां पे मैंने क्या किया है, जो भी मेरे सामने हो रहा है, जो भी सामने हो रहा है, द एवरीथिंग, द चेंजिंग सिचुएशन, एनवायरनमेंट, चेंजिंग फेसेस ऑफ द पीपल, तो और जैसे उनका माइंड चेंज होता है, मैंने हार्श रियलिटी को वहां पे पोर्ट्रे किया है। तो उसको लिखना या ना लिखना मेरे लिए खुद के लिए एक चैलेंज था, क्योंकि मुझे पता था कि वो पढ़ने के बाद सम सेट ऑफ पीपल वोंट बी हैप्पी विथ मी। ओके, तो वो एक्चुअली हुआ है। तो still I have chosen to write that. That was the challenging part of the book. Okay. So, sir, how did his relationships with family and friends reflect his principles? तो वही वही मैंने आपको बताया ना, तो वहां पे उनका कोई प्रिंसिपल नहीं था, वहां पे उनका कोई मोटिव नहीं था किसी भी रिलेशनशिप में। सी, व्हेन टू पीपल सिट for discussion, for example, we both are talking, you have your own thoughts, I have my own thoughts. Okay, I am trying to reflect my views on you, you are trying to reflect your views on audience and everybody. Okay, जब भी किसी डिस्कशन में या फिर किसी रिलेशनशिप में टू पीपल आर इन्वॉल्व, नो मीनर, तो दोनों का व्यू अलग होता है, दोनों का परसेप्शन अलग होता है, दोनों का थिंकिंग अलग होता है। लेकिन ये जिस भी रिलेशनशिप में थे, तो वो रिलेशनशिप में क्या था, तो इनका व्यू एब्सेंट रहता था, तो इनका व्यू कंप्लीटली एब्सेंट रहता था। तो ये मतलब इनका द सोल पर्पस विल बी लाइक इफ ही इज सिटिंग फॉर डिस्कशन विद आइदर विद हिज डॉटर, हिज सन, हिज वाइफ, हिज फादर, एवरीबडी, तो द सोल पर्पस विल बी लाइक लिसन टू देम एंड नॉट टू स्पीक अबाउट हिम। इनके बारे में कुछ बताना नहीं है, सिर्फ उनका सुनना है, उनको अच्छा लगे बस, इतना काफी। तो एंटायर लाइफ में उन्होंने कुछ भी विश नहीं किया एक्चुअली, ट्रस्ट में। मतलब इवन छोटे बच्चे तो यूजुअली कुछ मांगते रहते हैं ना एक्चुअली, मुझे वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। वो छोटे थे जब उनके माँ के साथ बात किया ना मैं, तो तब भी मुझे ये पता लगा कि सिंस फ्रॉम द चाइल्डहुड ही नेवर आस्क्ड फॉर एनीथिंग। आपको क्या चाहिए, वो फुलफिल करना ही उनका मोटिव था। तो एवरीबडी वाज हैप्पी पर्सन, एवरीबडी वाज हैप्पी पीपल एक्चुअली अराउंड हिम। दैट वाज द, ये अच्छा था, मतलब ये उनके बारे में बहुत अच्छा था। तो वर्थ प्रिजर्विंग स्टोरी, जैसे मैंने बोला कि दैट इज व्हाई ही इज स्पेशल एक्चुअली। तो उनका जो रिलेशनशिप था सभी के साथ, इट वाज नॉट लाइक 2 to 1 रिलेशनशिप, इट वाज लाइक ओनली 1-on-1 रिलेशनशिप। मतलब क्या है, वो रिलेशनशिप था, उन्होंने लिबर्टी दी हुई थी सबको कि आपका जिंदगी मेरे साथ जियो जैसे आपको चाहिए। ओके, उनका रिलेशन उनके बीवी के साथ था। तो उनके मेरे मदर इन लॉ एक्चुअली वाज वेरी मच डिपेंडेंट ऑन माय फादर इन लॉ एक्चुअली। उनके जाने के बाद उनको महसूस हुआ कि मैं इतनी खुश इसलिए हूँ, उसलिए थी क्योंकि वो मेरे जिंदगी में थे। और मेरे वाइफ ने बोला कि शी अंडरस्टूड द डिपेंडेंसी। मैंने एक चैप्टर लिखा है उसमें, द डिलेमा ऑफ डिपेंडेंसी। तो दैट चैप्टर वाज डेडिकेटेड टू माय वाइफ, रिलेशनशिप बिटवीन माय वाइफ एंड माय फादर इन लॉ। तो उनका रिलेशनशिप कैसे स्ट्रांग था, इट वाज स्ट्रांग बिकॉज ऑफ हिम, नॉट बिकॉज ऑफ हर। तो रिलेशनशिप ऑफ माय फादर इन लॉ एंड मदर इन वाज स्ट्रांग एक्चुअली, दैट वाज बिकॉज ऑफ हिम। तो यहाँ पे मुझे सीखने को ये मिला कि ये जो भी रिलेशनशिप है उनके दोस्तों के साथ है, उनके दोस्तों के, फॉर एग्जाम्पल, वो अपने दोस्तों के साथ बैठते थे, ही वाज अ, वो कभी भी टॉक्सिकेशन में बिलीव नहीं करते थे, वो नेवर ड्रैंक,
never had to smoke actually, never took any kind of things actually even अपना snacks वगैरह हो गए, कोई मतलब टेस्टी थिंग्स हो गए, वो सब नहीं करते थे। तो वो क्या करते थे, तो बाजू वाला क्या चाहता है, मेरे सामने बैठे वाला बंदा क्या चाहता है, उनको खुश रखना है। सो उनका रिलेशनशिप ऑब्वियसली सभी के साथ अच्छा था, दैट इज वाई। लेकिन उनके जाने के बाद ये सेम रिलेशनशिप बिकम टॉक्सिक, बिकॉज द सेम सेट ऑफ पीपल, उनको पूछने वाला भी कोई नहीं है, उनका हैप्पीनेस अभी चला गया ना। तो बिल्कुल। ये हो रहा है। हम्म, So he was the glue hold which used to held every single relationship together. हम्म। So, by your answers, I am understanding the nature of him was like giving nature. It was उनका बहुत गिविंग नेचर था, खुद के लिए वो सोचते ही नहीं थे। वो बस यही सोचते थे जो बराबर में मेरे है या मेरे कोई नोन है, वो क्या चाहते हैं, उनको मैं कुछ दूं, कैसे मैं हेल्प करूं। बहुत हेल्पिंग नेचर था उनका। और आज तो की। उनका एक ही विश था, जी। उनका एक ही विश था। उन्होंने, मैंने बुक में दिखाया है कि ए पर्सन हु हैज नेवर विश फॉर एनीथिंग एक्चुअली, ओके, समझ लीजिए हमने उन्होंने कुछ पूछा, हम्म। तो वो हम रेडी नहीं थे देने के लिए। उन्होंने लास्ट मोमेंट में ही वाज आस्किंग फॉर समथिंग, एंड none of us had courage to fulfill that wish actually. तो वो इतना सिचुएशन, दर्दनाक सिचुएशन था कि वो समय में उनका विश जो था, उनको पता था कि nobody will be able to fulfill that wish. सो उन्होंने खुद का विश भी लास्ट में खुद ही पूरा किया, किसी और को मौका नहीं दिया। दैट वाज द डेथ विश एक्चुअली। सो ही चोजन टू डाई। उनको साफ दिख रहा था कि ही विल बिकम अ बर्डन फॉर द एंटायर फैमिली इफ ही सर्वाइव्स, ओके। तो दैट वाज द ओनली विश ही विश्ड फॉर, और उन्होंने खुद के लिए वो फुलफिल भी कर लिया था। दैट वाज द स्पेशल थिंग अबाउट हिम। सो चूजिंग अ डेथ इज नॉट इजी टास्क एक्चुअली। सो दैट्स व्हाट मेड हिम स्पेशल एक्चुअली। So now let's come to the next question. How did he influence your own perspective on life and relationships? Okay. See, I can define in two steps actually. My life before my father-in-law was like I was busy in myself. Okay. मुझे कुछ पता नहीं था जिंदगी के बारे में, कुछ पता नहीं था। तो मैरिज जब होता है ना, the person tend to become somehow responsible. Okay. So I was started acting responsible because the whole life was there, whole new family was there. Okay. मुझे जजमेंट करने वाले बहुत सारे लोग आ जाते हैं लाइफ में शादी के बाद। तो देखिए, शादी के बाद माय वाइफ एंड आई स्ट्रगल्ड अलॉट एक्चुअली। हमारे व्यूज अलग थे, ओके, हमारे जिंदगी जीने का तरीका अलग था। तो यूज्ड टू फाइट अलॉट एक्चुअली, ओके। तो जैसे जैसे मैं मेच्योर होता गया रिलेशनशिप में, तो मेरा ये पॉइंट ऑफ रिलेशन, मतलब पॉइंट ऑफ ये आप क्या, रिलेटिविटी, द पॉइंट ऑफ रिलेटिविटी किसको देख के मैं अपने आप को कंपेयर करता था, वाज माय फादर इन लॉ एक्चुअली। माय फादर इन लॉ सेम सेट ऑफ पीपल के साथ रहते थे, खुश रहते थे, ठीक है। तो मैं उसी सेम सेट ऑफ पीपल के साथ बहुत मतलब कंप्लेंट करता था बहुत ज्यादा। तो आई वाज एवरी टाइम आई यूज्ड टू अंडरस्टैंड हाउ ही कैन बी वेरी जॉयस अमंग दिस सेम सेट ऑफ पीपल। नाउ द स्लोली स्लोली अंडरस्टूड, ओके, क्योंकि उनका जो तरीका था हैंडल करने का सामने वाले का, तो अलग था। वो कुछ वो तो वो सब मैं सीखता गया। अभी देखिए, मैं आई वॉज वेरी फर्म अबाउट अटेंडिंग यानी सोशल गैदरिंग्स, ओके। तो अभी मैं एक्चुअली क्या, अर्लियर एक पर्टिकुलर एक वेडिंग सेरेमनी था, मतलब दिस वाज सून आफ्टर माय मैरिज, दैट्स ओनली बीन 2 इयर्स, ओके। तो वहां पे जब मैं एंटर हुआ ना, तो होने के बाद एक्चुअली उस टाइम तक मुझे कोई जानता नहीं था क्योंकि क्या, मैं सोशल गैदरिंग में ज्यादा ये घुल मिल नहीं, आई वॉज नॉट यूज टू अटेंड दिस गैदरिंग्स एक्चुअली। तो वहां पे मुझे ज्यादा लोग नहीं जानते थे, ओके। मेरे फादर वाज वेल नोन इन द कम्युनिटी, बट आई माई सेल्फ वॉज यूज टू स्टे अवे फ्रॉम ऑल दिस काइंड ऑफ गैदरिंग्स। जब मैं एंटर हुआ ना, तो लेकिन वहां पे बहुत लोगों ने पूछा, बहुत लोग आपस में बात कर रहे थे, ही इज अ सन इन लॉ ऑफ हिम, ही इज अ सन इन लॉ ऑफ हिम। तो मेरी खुद की पहचान बन गई थी उनसे। आई वॉज अमेज्ड एक्चुअली, ओके। मेरे फादर से मुझे उतने लोग पहचानते नहीं थे, क्योंकि और मेरे फादर इन लॉ से ज्यादा मुझे पहचानने लगे थे लोग। और उतने रिच भी नहीं थे, मेरे फादर इन लॉ वाज नॉट रिच, ही वाज रिच इन हेरिटेज एक्चुअली, ही वाज रिच बाय हार्ट एक्चुअली। तो Yes. उनका जो तरीका था ये सब हैंडल करने का, वही उनका खासियत थी। तो उसीलिए वो फेमस हो गए थे। तो पीपल यूज टू लाइक
उनको बहुत चाहते थे, उनके साथ रहने के लिए उन सभी को अच्छा लगता था। इवन अ पर्सन विद अ बैड कैरेक्टर यूज्ड टू फील अ बिट हैप्पी अराउंड हिम। ओके, तो जिनके साथ यूजुअली हम इरिटेट होते हैं वो उनके साथ बैठेगा तो उनको उसको अच्छा लगेगा। तो दिस काइंड ऑफ, तो इट इज अ सिंपल गेम। तो उनके बाद ना, सो आई यूज टू लर्न फ्रॉम हिम। तो मेरा अभी क्या है सी, मैं थोड़ा गुस्से वाला आदमी था, तो वो टॉलरेंस के थे, वो कभी गुस्सा होते नहीं थे। तो माय वाइफ यूज्ड, आई डोंट नो इसे वेदर इट इज ट्रू और नॉट, शी इज सेइंग दैट फ्रॉम पास्ट 4 years एक्चुअली मैं मेरा गुस्सा थोड़ा कम हो गया है। सो somehow my father-in-law's behavior is has influenced me. ओके, उनके साथ रह के मैं भी थोड़ा उनके वैल्यूज समझ गया हूँ, उनके प्रिंसिपल समझ गया हूँ। तो इट इज इन्फ्लुएंसिंग मी, एंड even after his demise, no, it will quite influence me for a long time. I know, and even my kid actually, वो Hmm. मेरे बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। उनके मतलब उनके दादाजी, मतलब फादर ने का साथ जो जितना भी टाइम स्पेंड किया ना, Hmm. उसको रिफ्लेक्ट करता रहता है। उसको ही ज्यादा मानता, उनको ही ज्यादा मानता है। तो वो वैल्यूज है। सो दैट इज द आर्ट ऑफ लिविंग अ सिंपल लाइफ दैट आई हैव टेकन अवे फ्रॉम हिज ओवरऑल लाइफ। ओके, सर्टेनली आई एम अ पर्सन हु हैज चेंज। थोड़े दिन से चेंज हुआ हूँ उनके इसमें रह के, उनके साथ रह के। डेफिनेटली अफेक्टेड माई लाइफ। So, next question is that why do you think we often fail to appreciate the people closest to us during their lifetime? See, that is the course of life, because we are the center point of our life. Okay, we think about ourselves. Everybody actually tend to think about themselves actually. True. तो जब हम पैदा होते हैं ना, तो पैदा होते हैं तो सभी का अटेंशन हमारे पास होता है, ठीक है। तो उसके बाद जब बड़े होते हैं तो हमारा अटेंशन शिफ्ट होता है स्कूल कॉलेज में हमारे दोस्तों की तरफ, ठीक है। जब स्कूल खत्म 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 होता है ना, तो आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट लुकिंग आउट फॉर आवर करियर, वी विल बी बिहाइंड आवर करियर, अर्निंग मनी, ओके, बिल्डिंग थिंग्स, रिलेशनशिप, एंजॉयिंग लाइफ। ओके, मैरिज होता है। मैरिज के बाद द होल न्यू न्यू लाइफ है एक्चुअली। तो वहाँ पे वी विल स्टार्ट एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स एक्चुअली। डिफिकल्टी होती है, एडजस्ट करने में बिजी हो जाते हैं, नई फैमिली आती है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, फॉर्मेलिटी स्टार्ट स्टार्ट हो जाते हैं। वहाँ पे जाना है, फंक्शन अटेंड करना है, ठीक है, उनके यहाँ पे मिलने जाना है, उन्होंने बुलाया है, यहाँ पे है, उनका थोड़ा बीमार है, उनके पास जाओ। तो शिफ्ट बिजी हो जाते हैं। तो उसमें क्या है, हमारे खुद की तकलीफें चालू होता है, हमें भरो, पैसे कम पड़ रहे हैं, पैसे कमाओ, बच्चे की डिमांड स्टार्ट, बच्चे के पैदा होते हैं, बच्चे के साथ हमारा नया रिलेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जब बूढ़े हो जाते हैं तो विल स्टार्ट एक्सपेक्टिंग डिफरेंट थिंग्स एक्चुअली फ्रॉम द लाइफ। एंड दिस पर्टिकुलर थिंग एक्चुअली आई कैन रिलेट, बिकॉज आई एम सीइंग माय फादर, bedridden father from past 7 years. Okay, so his expectations are quite different. So now, so इसमें एक कॉमन चीज है कि हर एक पॉइंट ऑफ रिलेशनशिप, हर एक कोर्स ऑफ लाइफ के टाइम पे वी आर फोकसिंग ऑन आवर सेल्फ एक्चुअली। वी वांट to make ourselves happy, and we expect that, so this happiness should come from others, okay। Hmm. लेकिन ये हैप्पीनेस जब 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 पूरे होते हैं ना, तो मतलब ये जो ख्वाहिशें पूरी होती हैं, जो इच्छाएं पूरी होती हैं, तो वी फॉरगेट एक्चुअली फॉरगेट आई विल बी हैप्पी फॉर ओनली शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, एंड लुक आउट फॉर अनदर थिंग दैट मेक्स इट हैप्पी, ओके। ये जर्नी, ये रेस में हम भूल जाते हैं कि देयर विल बी सम पीपल जेन्युइनली स्टैंडिंग बिहाइंड अस, हु आर मेकिंग आवर लाइफ कंफर्टेबल एक्चुअली। फॉर एग्जांपल हमारे फादर है, मदर है, मेरे फादर इन लॉ थे, मेरे वाइफ है, ठीक है। तो हम अप्रिशिएट कर ही नहीं पाते। समझ लीजिए, अगर मुझे आज बाहर जाना है या फिर मुझे दोस्तों के साथ बाहर जाना, मेरा बेटा कहेगा कि मुझे कि पापा मेरे मुझे बाहर जाना है, अगर मैं उनको रोक दूं, मैं बोलूंगा कि नहीं आज नहीं जाना है, तो वहां पे वो मेरे रिलेशनशिप विल चेंज। ही विल सडनली स्टार्ट शोइंग अग्रेशन एंड एंगर टुवर्ड्स मी। ओके, मेरे पिताजी अच्छे नहीं है, वो मुझे बाहर नहीं जाने देते, ठीक है। तो ये चालू हो जाता है, ठीक है। क्योंकि क्या है, अगर सब पर्सन को जो जो वो मांग रहा है, जो जो वो चाह रहा है, अगर वो सब मिलते चले जाए तो उसको रोकने वाले कोई नहीं होगा। तो ये जो हमारे पीछे खड़े हुए मेरे फादर है, मेरे ब्रदर है, मेरे सिस्टर है, ओके, मेरे फादर इन लॉ है, मेरे, ये सब हमें रोकने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि क्या है, वो रुकने में ही भलाई है, भलाई है। ये हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो इसके लिए वी स्टार्ट टू डेवलप सर्टेन काइंड ऑफ हेट्रेड टुवर्ड्स आवर आवर ओन एक्चुअली डियर वंस एक्चुअली। तो जब उनका देहांत होता है, जब वो हमारे लाइफ से चले जाते हैं ना,
तब हमें रियलाइज तो होता है, रियलाइज वी स्टार्ट रियलाइजिंग ओनली आफ्टर दैट डिमाइस एक्चुअली. दिस इज द केस एक्चुअली दैट हैज बीन डिपिक्टेड इन माय बुक एक्चुअली. सो एक्चुअली हम क्या करते हैं, देयर विल बी ओनली वन थिंग आफ्टर दैट इज टू रिग्रेट. ये जो रिग्रेट रिग्रेट है ना, ये सिर्फ यही बचा हुआ था. तो ये बहुत बड़ी बड़ी बात है एक्चुअली, क्योंकि आई रिमेम्बर दिस वन. मैंने बुक में लिखा है कि मैं जब 30 इयर्स का था, 31 इयर्स का था, अप अंटिल दैट टाइम एक्चुअली आई टू वर्क एक्चुअली. तो मैं एजुकेशन हो गया, दूसरी दूसरी जगह पे मेरे फैमिली से दूर रहा. उसके बाद मेरा करियर था, फैमिली से दूर रहा. लेकिन क्या हुआ, मेरा शादी भी हुई, शादी होने के बाद मेरी वाइफ भी मेरे साथ आई. तो मेरा वाइफ, मेरे जो मदर थे, मेरी माँ थी. तो ही, अगर मैं वो 6 महीने भी एक बार आ रहा हूँ तो वो खुश हो जाती थी एकदम. ठीक है. तो जिस दिन मैं आया, मैं शादी के बाद मैं पहली बार आया था घर. तो शी वॉज वेरी हैप्पी एक्चुअली दैट टाइम. ओके. मैं मॉर्निंग 10 बजे आया था, और 4 बजे उनका देहांत हो गया था. तो सेम डे एक्चुअली. तो ये जो 7-8 घंटे का मोमेंट था ना, हम्म. वो जीने के लिए शी वेटेड फॉर मेनी इयर्स एक्चुअली. सो लेकिन आई वॉज बिजी, शी वॉज वेटिंग फॉर माई अराइवल, वेर इन आई वॉज बिजी बिजी विथ माई लाइफ, माई करियर, एवरीथिंग. एंड दिन में वो फोन करती थी तो मैं इरिटेट हो जाता था कि मेरे मॉम फोन कर रही है, बार बार फोन कर रही है. लेकिन अभी फोन करने वाला कोई बचा नहीं वहां पे. जो जिस दिन मैं वापस आया था ना, वो 6, 7, 8 आवर्स ऑफ टाइम, उसमें भी वो अपने लिए जी नहीं, वो शी वॉज वेरी बिजी इन कुकिंग लॉट ऑफ थिंग्स फॉर मी. जो मुझे अच्छा लगता है वो कुक करने लगेगी. जो मुझे, जैसे मुझे अच्छा लगता है वैसे घर सजाने लगी. So even the last moment also, she spent that last 7, 8 hours, because जो मुझे अच्छा लगता है ना वैसे वो जी के गई. तो विद इन 2-3 मिनट शी वॉज ड्रॉप डेड एक्चुअली. लेकिन उसके बाद मैं सोचता रहा कि क्यों क्यों ऐसा किया मैंने. मैंने अप्रिशिएट ही नहीं किया, मेरा मॉम मेरा वेट कर रही है. ओके. उसकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ. ठीक है. उनके जाने के बाद लाइफ इज नॉट सेम एक्चुअली. सो दैट आई कैन फील इट नाउ. तो ये बुक लिखने का और एक मकसद ये था कि हर किसी के लाइफ में स्पेशल एंजल्स होते हैं, आपके मदर हो, आपके फादर हो. हम क्या रहते हैं बिजी, क्योंकि वो फुलफिल कर रहे हैं हमारे विशेष. तो हम बिजी होते रहते हैं, एक के बाद एक विशेष मांगते रहते हैं. लेकिन क्या है, ये कभी भी नेवर एंडिंग हैप्पीनेस है, तो ये कभी भी खत्म नहीं होगा. तो क्या है, ये एक के बाद एक चाहिए, उसके बाद फिर हैप्पीनेस मिलेगा थोड़े टाइम के लिए, फिर नया चाहिए. इसके पीछे बंदे, मतलब कोई स्पेशल इंसान होता है, उसको हम अप्रिशिएट नहीं करते. उनका उनका खालीपन, उनका उनका वजन जो था जिंदगी में, वो फील होता है उनके जाने के बाद. तो ये बुक अगर कोई, मुझे पता नहीं कि कोई पढ़ेगा नहीं, क्लोज वंस तो पढ़ेंगे. लेकिन अगर कोई पढ़ रहा है तो उसका मैसेज, सोल मैसेज विल बी लाइक, you please appreciate the presence of special angels like your father, your mother, your brothers, okay, who are close one to you. And अगर आपको कुछ भी हो जाए तो उनके लाइफ में फर्क पड़ेगा. तो ऐसे लोगों का प्रेजेंस आपकी जिंदगी में हम एक्चुअली अप्रिशिएट करना चाहिए. उनके साथ थोड़े भी मोमेंट हम खुशी से बिताएं. दैट विल बी द गुड थिंग अबाउट द लाइफ. राइट. और सर, जब कोई चला जाता है ना, उसके बाद उसकी वैल्यू पता चलती है, एक्चुअल वैल्यू जी. रियलाइज जी. होता है. बिल्कुल सही. जी. So now my next question is, how does the book addresses themes of forgiveness and regrets? ये बिल्कुल इसी से ओके. थोड़ा सिमिलर है, बट आप थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए. जी. जी. रिग्रेट, जी रिग्रेट था विथ रिलेशन टू माय फादर इन लॉ एक्चुअली. हम्म. तो 10 साल में उनके साथ था एक्चुअली. फर्स्ट 2 इयर्स ऑफ आफ्टर मैरिज नो, आई टू नेग्लेक्ट हिम एक्चुअली. उनके साथ ज्यादा बात नहीं करता था मैं. इवन आफ्टर दैट नो, ओनली फॉर कैजुअल फॉर्मेलिटी टू मीट हिम. ओके. इन दिस 10 years ऑफ लाइफ हार्डली वी स्पोक ओनली 2 टाइम्स एक्चुअली. सिर्फ दो ही टाइम हमने बात की थी, वो भी लास्ट मोमेंट में. तो मुझे जब रियलाइज हो गया था कि वो बचेंगे नहीं, उनका मैं हालत देख के समझ गया था एक्चुअली. तो उस टाइम उन्होंने बात की थी मुझसे. दैट उस टाइम पे भी आई वॉज फीलिंग अनकंफर्टेबल, क्योंकि मैं उनके साथ उतने फ्री में बात नहीं किया था अभी तक. हम्म. वो मैं उनको थोड़े कुछ हद तक मैं हेट करता था एक्चुअली. हेट करता था किस लिए, क्योंकि हम झगड़ते थे, मेरे वाइफ और मैं झगड़ते थे एक्चुअली. हम्म. तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी गुस्सा था एक्चुअली. ही वॉज नॉट रेडी फॉर दिस मैरिज एक्चुअली. ओके. उन्होंने एक्चुअली साफ मना कर दिया था मेरे मैरिज के लिए मेरे वाइफ के साथ. माई वाइफ वॉज लाइक, शी सेड दैट आई वांट टू मैरी हिम ओनली, दैट्स व्हाई. एंड ये मोमेंट में भी उन्होंने एक्चुअली
शांत से उन्होंने उसको भी कुछ नहीं किया, तो उन्होंने बोला तुम्हें अच्छा अच्छा लग रहा है ना, उसके साथ शादी कर लो। तो आफ्टर मैरिज नो, सभी लोगों ने जैसे एक्सपेक्ट किया था, यूज्ड टू फाइट अलॉट, ओके। तो उनके ऊपर मैं एक्चुअली थोड़ा हेटरेड था मेरा, क्योंकि क्या है, आई डोंट नो, ऐसे हेट करता था मैं, माई नेचर वॉज लाइक। तो ये था। तो मैंने ये सारे मैं जो 10 साल का टाइम था ना, आई स्पेंट स्टेइंग अवे फ्रॉम हिम एक्चुअली। उनके साथ बैठ के मैंने बात नहीं किया, लेकिन साइलेंट ऑब्जर्वर था मैं, सब कुछ देखता था मैं सब कुछ, ठीक है। तो लास्ट मोमेंट में 2 घंटे बात किया मैंने उनसे, ठीक है। तो वो 2 घंटे में, जस्ट लाइक आई वाज नोइंग अ एंटायर न्यू पर्सन एक्चुअली। ही यूज्ड टू टेल मी, ही वाज टेलिंग मी सम मतलब थोड़ा निजी बातें बताई उन्होंने, ठीक है। तो वो था। तो वो बातें सुनने के बाद मुझे रिग्रेट हुआ कि काश मैं उनके साथ और थोड़ा टाइम स्पेंड कर पाता, ठीक है। उनके मैं हर एवरी मोमेंट आई वाज थिंकिंग देयर इज लॉट ऑफ टाइम फॉर इम्प्रूवमेंट एक्चुअली। अभी वो टाइम है, बाद में देखेंगे, लेकिन वो टाइम नहीं, अब आने वाला नहीं है। तो ये रिग्रेट है मेरे लिए, तो रिग्रेट था। और स्पेशल बात यह है कि ये जो 10 साल थे ना, तो 10 साल में ही नेवर कंप्लेंट एक्चुअली। आई वॉज नॉट पर्सन ऑफ चीयरफुल नेचर एक्चुअली। मैं उनको टेंशन देता था एक्चुअली, लेकिन उन्होंने पलट के टेंशन नहीं दिया। मैं उनको गुस्सा दिलाता था, लेकिन उन्होंने कभी भी इन 10 years ही नेवर क्रिएटेड एनी सिचुएशन विच मेड मी एंग्री। तो उनको मुझे बुरा लगता था, मतलब उनके आसपास वालों, मतलब जब उनके घर में जाता था तो उनके दूसरे जो रिलेटिव्स थे उनकी वजह से मुझे थोड़ा बुरा लगता था व्यूअर से। लेकिन मेरे फैमिली जो है, मेरे फैमिली इज नॉट इजी टू लिव विथ एक्चुअली। उनके फैमिली अच्छे हैं एक्चुअली। हमारे फैमिली जो है, मतलब मेरे फैमिली भी अच्छे है, लेकिन क्या है, हम थोड़ा अग्रेसिव काइंड ऑफ पीपल एक्चुअली, ओके। तो इवन विथ अस ही यूज्ड टू फील हैप्पी एक्चुअली। सो उनकी फैमिली अच्छी थी, वहां पे मैं कंप्लेन करता था। मेरी फैमिली वाज नॉट, मतलब वो उतना अग्रेसिव थे हम लोग, फिर भी हमारे साथ वो अच्छे रहते थे। दैट्स व्हाट काइंड ऑफ नेचर एक्चुअली। तो इन दिस 10 year नो, माय किड, मेरा 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 बेटे को उन्हें देखभाल की, ठीक है। कपड़े वो लाते थे, बर्थडे वो मनाते थे, ठीक है। उसके साथ, उनके साथ वही रहते थे। और मेरे बीवी का जो है वो सारे वही देख रेख करते थे, इवन आफ्टर मैरिज। और मेरी बीवी को अच्छा लगता था एक्चुअली। दैट्स व्हाई नेवर रिजेक्टेड एनीथिंग एक्चुअली, नेवर ट्राइड टू स्टॉप एनीथिंग। आई सेड ओके, इट्स मेकिंग यू हैप्पी, यू गो हेड। तो वो खुश थे एक्चुअली। एंड मुझे बर्डन फील नहीं था, किसी भी बात का बर्डन नहीं था, ठीक है। सब कुछ एवरीथिंग यूज्ड टू टेक केयर। लेकिन अब क्या है, उनके जाने के बाद मुझे पता चल रहा है कि कितना रेस्पॉन्सिबिलिटी देते थे वो खुद के ऊपर, ठीक है। दैट वाज अ रिग्रेट। What lessons about family and relationships do you hope readers will take away from this book? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लोज रिलेटिव्स के अलावा कोई बुक पढ़ेगा ये मैं आई डोंट थिंक सो। अगर कोई पढ़ रहा है तो विल बी फॉर्चुनेट कि सो दे विल बी लर्निंग ब्यूटीफुल लाइफ about a simple man who has lived a life cheerfully. And second thing is, अगर ये कोई पढ़ रहा है बुक, तो उनको इसमें क्या सीखने को मिलेगा? सिंपल थिंग इज दैट हाउ टू लिव लाइफ सिंपली। सेकेंड थिंग इज ग्रेटिट्यूड, शो ग्रेटिट्यूड, शोइंग ग्रेटिट्यूड। जैसे कि मैंने बोला कि देयर विल बी स्पेशल पीपल हु आर बोर्न जस्ट टू टेक केयर ऑफ आवर सेल्फ, ओके। तो मतलब क्या है, हमारे देखभाल के लिए कुछ लोगों को भगवान ने भेजा हुआ है। फादर्स हो, मदर हो गए, ठीक है। अगर मुझे तकलीफ है तो इवन दो आपके फ्रेंड्स आएंगे, फ्रेंड्स विल शो कंपैशन ऑन दोस थिंग्स, बट जिनको ट्रूली मैटर होगा, जिनको हर्ट होगा, जिनको तकलीफ होगा, वो दैट विल बी योर फादर, मदर, योर ब्रदर, सिस्टर, ओके। तो उनको थोड़ा चिंता हो जाएगा, दे कैन फील absence if something happens to you. So I can say that our life is simply in its place. Everything is on its track because of life is getting influenced by some special people. Okay. So ये जब तक हमारे लाइफ में है, तो यूजुअली द टेंडेंसी विल लाइक वी विल कंटिन्यू टू टेक उनका जो प्यार है, उनका जो लव है, अफेक्शन है, उनका हेल्प है, विल कीप ऑन टेकिंग दिस। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वी टेक इट एज लाइफ टेकन एज ग्रांटेड। तो वो है, वो करेंगे, मेरे फादर है, वो देखभाल करेंगे, वो देख लेंगे, ये देख लेंगे, ठीक है। लेकिन जब तक वो है, our life will be on track. So when these special angels disappear, no, our life will be mess. Okay. तो अगर if anybody is reading this book, no, he should take away the message that please be grateful, at least
try once to give back what you are getting. Okay, to show some degree of affection, love to your parents. मेरे फादर इन लॉ थे, तो आपके फादर, आई डोंट नो, बिकॉज थोड़े लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि व्हाई यू आर राइटिंग बुक अबाउट योर फादर इन लॉ, व्हाई नॉट अबाउट योर फादर. Yes, it's very आई unique. फील जी. तो उन्होंने बोला, मैंने बोला कि मेरे फादर जो है वो भी खास है, मेरे फादर इन लॉ भी खास है, लेकिन फादर इन लॉ इवन दो ही इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू मी, सो उनका प्रेजेंस मेरे लाइफ में इतना हेवी था कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था मेरे जिंदगी में भी. Even in my family's life, my father life was in its place because there was no any kind of disruption, any kind of distraction, any kind of anger, any kind of hatred. ये सब absence था उनके तरफ से life was balanced. Okay, तो हमारे सभी की जिंदगी में there will be some people, because of them our life will be in balance. So giving back them some portion of what we are getting and appreciating their presence is the theme of this book actually. So, my next question is, what emotions did you experience while revisiting memories and writing about your father-in-law? Okay, so since writing his book actually is and studying his life has created different aspect in my life actually. तो मैं किसी को भी देखता हूँ, for example, now the message is very clear that everybody carry a unique life story with himself actually. सभी की जिंदगी में स्टोरी है, तो I can see that now. जब मैंने इनका लिखा है जिंदगी के बारे में, तो हर किसी के लाइफ में मुझे एक स्टोरी दिखाई देती है. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल क्या है, मेरे घर में एक बंदा था जो काम करने के लिए आता था, उसका नाम था कल्लापा बोल के. ओके, तो जो नॉर्मल चोर्स रहते, जो मतलब अगर कुछ पेड़ काटना है, ठीक है, पेड़ गिरने वाला है, पेड़ काटने का हो, ठीक है, किसी का मतलब अभी घर पे कुछ मतलब कोई इश्यू है इलेक्ट्रिकल, ये प्रॉब्लम है, तो वो आके ठीक करके जाता था, और इन रिटर्न ही वाज आस्किंग फॉर अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ हेल्प, 50 रुपीज, 100 रुपीज. वेर इन अगर इसी इसी काम को हमने किसी के साथ करवाया, दूसरे को हायर किया, विल बी आस्किंग फॉर थाउजेंड्स ऑफ रुपीज. तो वो खुश था अपने आप में. अगर समझ लो किसी को किसी ने उसको खुश होके एक जैकेट दे दिया, शूज दे दिया, तो वो उसको पहन के खुशी से घूमता था. ठीक है, तो रिसेंटली डाइड एक्चुअली ना वो मरने से पहले ना, वो 2 दिन पहले मेरे उसके साथ बात हुई थी, तो वो आके हमारे घर का फ्लोरिंग ठीक करने वाला था. तो एवरी टाइम आई, वो मैं जब जब देखता हूँ ना, तो उसकी याद आती है. ठीक है, तो मुझे लगता था कि वो बंदा अपने आप में खुश था, मतलब वो उतने कम सुविधा में भी ही वॉज लिविंग अ वेरी गुड लाइफ कंपेयर टू मी, एटलीस्ट कंपेयर टू मी. ओके, तो ये सब है एक्चुअली, तो ये सब यूनिक है. तो एवरीबडीज लाइफ इज डिफरेंट एक्चुअली. ओके, तो ये स्टोरी है, ये स्टोरी को चेरिश करना जरूरी है. If your father-in-law could read this book, what do you think his reaction would be? So as I said, so उनका so always used to believe in living simple life. Okay, वो अपने 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 लाइफ को कभी भी he never used to talk about his life actually. Okay, उनका लाइफ इतना स्पेशल, वो समझते थे कि उनका लाइफ इतना स्पेशल नहीं है. He used to believe in living a simple life cheerfully, as I said. So किसी भी सिचुएशन में ना, तो वो प्रेजेंट रहते थे. ओके, तो वो उनका माहौल अलग अलग रहता था. ठीक है, लेकिन फोकस उनके ऊपर नहीं रहता था, क्योंकि वो हिडन एंजल की तरह काम करते थे. ठीक है, तो अगर वो जिंदा होते, अगर मैं एक बुक लिख रहा होता, तो ही वुड नेवर गिव मी परमिशन एक्चुअली. ओके, वुड हैव गिवन मी परमिशन टू राइट दिस बुक. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, अगर किसी भी तरह, अगर ये बुक आफ्टर दिस डिमाइस, इफ इज रीडिंग द बुक, ओके, ही विल फील ही, अगर क्योंकि ही विल एक्सप्लोर अनदर फेस ऑफ माय लाइफ. क्योंकि कभी भी मैंने उनके सामने बैठ के उनके बारे में बात नहीं की, उनके उनके साथ बात नहीं किया, तो ही यूज्ड टू थिंक दैट आई हेट हिम. तो वो समझते रहे कि मैं उनको पसंद नहीं करता. ओके, लेकिन क्या है, वो मुझे, इवन दो आई वॉज अ बैड पर्सन इन द रिलेशनशिप, यूज्ड टू लाइक मी. He was a good person, wherein he used to think that I hate him. This was the kind of relationship, and we मैं एक्चुअली स्पेशली मैं अवॉइड करना, मैं अवॉइड करता रहता था उनको. ठीक है, तो किस हद तक वो मुझे जानते थे मुझे पता नहीं, अगर अगर ये बुक पढ़ेंगे तो ही विल गेट शॉक्ड कि
So someone who is not elected director to me has studied my life thoroughly to some extent, okay, and who is thinking that his life is worth preserving and writing book about him. I don't know how his reaction would be, but somehow शायद वो खुश हो पाए, या फिर एटलीस्ट उनको खुशी नहीं तो उनका डीएनए जो कैरी करे उनके बच्चे वो खुश हो पाए. तो द सोल पर्पस ऑफ राइटिंग बुक हियर इज दैट जिस दिन मेरे ब्रदर इन उनका शादी हो रहा था, तो बिफोर 2 months बैक नो, व्हेन ही वाज गेटिंग मैरिड, आई सेड हिम दैट कि आपके पिताजी के साथ मैंने 10 साल बिताए हैं, बहुत स्पेशल है, आपका घर बहुत स्पेशल है, ओके, लेकिन उनके जाने के बाद ये सेम घर नहीं है. आप मेरे साले साहब का जब शादी हुआ ना, तो मैंने उनसे कहा कि आपका ये भी नया जनरेशन स्टार्ट हो जाएगा, आपका बच्चे आएंगे, आपके आपके बच्चे के बच्चे हो जाएंगे. तो these generation, the upcoming generation will never know about the existence of such kind of person in your lineage. आपकी फैमिली में ऐसा कोई बंदा था जो बहुत खास था, तो ये उनको कभी पता नहीं चलेगा. एटलीस्ट ये बुक के द्वारा आई वांटेड टू preserve his memories, and everybody who's reading, at least from his family, should be able to recreate that life, short life of his, every time they go through the book. That was the sole intention. Okay. Yeah. So, what legacy do you hope this book will leave for your family and readers? जी, रीडर्स के बारे में पता नहीं. रीडर्स के बारे में द अप्रिशिएशन इज एनफ इफ दे, आफ्टर रीडिंग द बुक, इफ दे वर एबल टू अप्रिशिएट द प्रेजेंस ऑफ देयर फैमिली मेंबर्स, दैट्स एनफ. लेकिन आफ्टर माय फादर इन लॉस डिमाइस नो, बहुत चेंज हो गया है लाइफ में, ओके. द पीपल हु कैरिंग देयर हिज डीएनए एक्चुअली, दे यूज्ड टू बिहेव exactly like him. My wife, actually, my wife per se, my wife is together with me even after 10 years of marriage because I'm hard to live with, kind. मैं उस तरफ का आदमी हूँ, तो मेरे साथ वो मुझे बेयर करना थोड़ा डिफिकल्ट है. तो मेरे साथ स्टिल शी इज स्टेइंग विथ मी बिकॉज कि उनके साथ उनके फादर का स्ट्रेंथ है, उनके पास उनके फादर के जैसा कैरेक्टर्स है. तो वो शांत रहती है, टॉलरेट करती है मुझे, और जस्ट लाइक हर फादर नो. तो वो मतलब क्या, इवन शी स्पेंड मोस्ट ऑफ हर टाइम मेकिंग माई लाइफ कंफर्टेबल और हर, ओके. तो ये जो है डीएनए में है उनके. लेकिन आफ्टर ये और उनके हमारे सारे साहब जो है उनके ब्रदर है, तो वो ब्रदर के पास भी सेम क्वालिटी से, ही इज अ वेरी काइंड मैन एक्चुअली. एंड एवरी टाइम आई गो टू हिज होम नो, टू हिज न्यूली वेडेड वाइफ, आई से दैट ही इज 1,000 टाइम बेटर गाय देन मी, क्योंकि उनके फादर्स की क्वालिटी है. लेकिन जैसे मैरिज के बाद ना उनके थोड़े यूजुअली कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं ना, थोड़ा नया मैरिज है, तो मैरिज के बाद इन एब्सेंस ऑफ हिज फादर समथिंग इज हैपनिंग इन द हाउस. सेम द हाउस इज नॉट द सेम हाउस विच इज इट यूज्ड टू बी. तो मैं उनको बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट बाय रीडिंग दिस बुक यू शुड कैरी योर फादर लेगेसी विथ यू, ओके. आपके साथ उनको मरना देना नहीं चाहिए. ही हैज क्रिएटेड दिस इन्वायरमेंट, हैप्पी इन्वायरमेंट. तो क्रिएट करने के लिए सैक्रिफाइस सो मच थिंग एक्चुअली. उन्होंने सेल्फलेस जिंदगी जिया है, ओके. एंड मुझे तो नहीं आता क्योंकि आई बिलोंग टू डिफरेंट फैमिली, ओके. उनके थोड़े जो चीजें हैं मैं अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, लेकिन कितना भी कोशिश करो तो माई डीएनए विल टेक ओवर पावर माई इमोशन सम पॉइंट ऑफ टाइम. लेकिन दे आर इन बिल्ट विद देयर फादर्स कैरेक्टर्स, ओके. एटलीस्ट दे डू व्हाट दे शुड डू इज दैट उनके फादर का जो स्ट्रेंथ था, जो काइंड ऑफ नेचर था, जो बिहेवियर था, उसको अगर एटलीस्ट उनके फैमिली मेंबर्स रिफ्लेक्ट कर पाए, द सेम काइंड ऑफ लाइफ the which my father-in-law lived, if they continue to live same kind of life, they can change the environment around us actually and make it more cheerful. That is the thing actually. Yes. Thank you for the questions I asked, and you gave very good answers related to your book. So अब हम आपकी बुक का लिंक नीचे डिस्प्ले कर रहे हैं ताकि लोग जाएं और आपकी बुक को रीड करें और समझें रिस्ट्रिक्टेड मिस्टिक.
Thank you so much, Kiran, for joining the book launch event. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, everyone, for joining and watching us. Do not forget to like, share, and subscribe. ऐसे ही हम न्यू बुक्स और उनके ऑथर्स के साथ आते रहेंगे.